میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہوئے تھے کہ میری بیوی کے مرنے کی اندوہناک خبر ملی۔ میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری اس قدر محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جس کے ساتھ میں ابھی تک کھل کر اظہار محبت بھی نہ کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اس قدر جلد رخصت ہو جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کوئی کسر یا کمی نہیں چھوڑی تھی، اس کی چاہت کا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن زندگی نے مجھ پر اتنا بڑا ستم کر دیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چل بسی۔ لیکن بیوی کی موت کے بعد یہ اصل کہانی کا آغاز ہوا، جس نے نہ صرف مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا بلکہ اصل رشتوں کی پہچان بھی کروا دی تھی۔ جیسے میری بیوی کی مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ شدید غم و غصے کے عالم میں اس کی ماں مجھے لعن طعن کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کے وقت تو بے حد خوش تھی اور ہم سے کہہ رہی تھی کہ اب اس گھر سے بس اس کا جنازہ ہی نکلے گا، اور تو نے سچ میں اس کا جنازہ ہی نکال دیا۔ تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی؟ یقیناً تو نے ہماری بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں گے، اور وہ بیچاری کسی کو کچھ بتانے کی بجائے خود ہی گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ میں چپ چاپ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اور اب میں انہیں کیا سمجھاتا کہ میں تو ابھی تک اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق ہی قائم نہ کر سکا تھا، میں بھلا اس پر کیا ظلم کر سکتا تھا کہ ابھی تو ہم دونوں کے رشتے میں بے حد تکلف تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب نہ ہو سکا تھا، کیونکہ وہ اس قدر شرماتی اور لجاتی تھی کہ میں اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیتی۔ خیر، اس سارے چوہے بلی کے کھیل میں 3 ماہ گزر چکے تھے اور مجھے احساس تک نہ ہوا تھا، لیکن اصل قیامت تو اب ٹوٹی تھی کیونکہ میری ساس مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ایک ایک گناہ کا حساب تمہیں دینا ہوگا، تم نے میری بیٹی پر ظلم و ستم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ بھی ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے بضد تھے کہ کیونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری تھی، لہٰذا اب اسے یہیں پر دفنایا جائے گا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری بیوی کے میکے سے ایک آدمی بہت زیادہ اصرار کر رہا تھا کہ اب ہم اسے کسی بھی صورت دفن ہونے نہیں دیں گے۔ تم نے اس کے جیتے جی بھی اس پر بے حساب ظلم کیے ہوں گے، لیکن اب ہم اسے مرنے کے بعد بھی یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے یہاں سے میت کو نکال ہی لیا۔ وہ لوگ اسے اپنے گھر میں لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اب وہ میری بیوی تھی۔ وہ دفن چاہے جہاں بھی ہوتی لیکن اس کے ساتھ میری نصیب ختم ہونے سے تو رہی، لیکن میں بھی ہمت کر کے اس کے ساتھ ہی وہاں چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے جب اسے لحاظمی اتارا تو میرا رواں کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں انہی خیالوں کے اندر گم تھا کہ کس نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے کی بہت زیادہ ضد کی تھی اور زور دیا تھا۔ مجھے کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم بھی اس قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ پرے ہٹ جاؤ اور نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب اور نفرت انگیز لگ رہا تھا۔ میں ہاتھ بڑھا کر قبر سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا تو جلدی سے قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، اور پھر مجھے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ اور تم یہاں اب کہ اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے؟ جاؤ، اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی کوسیلی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا میں جب چپ چاپ اپنے گھر آ گیا، گھر آ کر میرا دل بری طرح سے رو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے کسی اچھے دوست کو اپنے دل کی سارے پریشانی سنا کر اپنے دل کا غم کچھ ہلکا کر لوں۔ تبھی میں نے جیب سے موبائل نکالنے کے لیے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا تو موبائل میری جیب میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا اور سوچا کہ میں اپنا موبائل شاید کسی راستے میں پھینک آیا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ قبرستان سے واپسی پر میری جیب ذرا ہلکی پھلکی تھی۔ میں اس وقت یہ فرق محسوس نہ کر سکا تھا، لیکن بات اصل میں یہی تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان میں ہی بھول آیا تھا۔ اب فون کے بغیر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی، یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا وہیں پر پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی متلاشی نگاہیں ارد گرد موجود تمام قبروں کے اوپر اور نیچے اپنا موبائل تلاش کرنے لگے، لیکن مجھے کہیں پر اپنا موبائل فون نظر نہیں آیا۔ میں پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی ایک بڑا شخص میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹے؟ وہ شخص شاید اس قبرستان کا گورگن تھا۔
चाचा मैं अपना मोबाइल यहाँ कहीं भूल गया हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ। मैंने जवाब दिया, मोबाइल कहीं तो अपना मोबाइल कब्र के अंदर तो नहीं गिरा गए? चाचा ने बड़ी हैरानी से पूछा। हाँ ये भी हो सकता है, दरअसल जब भी मैं कब्र के अंदर देख रहा था तो मुझे किसी ने कब्र से हटाने के लिए कमीज से पकड़ कर खींचा था। लगता है कि मेरा मोबाइल नीचे गिर गया है। ये बात सोचकर मैं लर्जा कर रह गया। तो क्या मेरा मोबाइल इस कब्र में गिर गया है जिसमें मेरी बीवी दफन है? लगता है मुझे कब्र खोदनी पड़ेगी। मैंने हल्की सरगोशी की। तौबा करो मियाँ, कैसी बातें करते हो? एक चंद हजार के बदले तुम अल्लाह का इतना बड़ा कानून तोड़ोगे? कब्र अल्लाह की याद होती है। खबरदार, अगर तुमने कब्र खोदने की कोशिश की, तुम्हारी बीवी के सारे मैके वाले, सारे घर वाले उठकर यहाँ आ जाएंगे और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसी बात हरगिज मत करना। वो ये सोचेंगे कि उनकी बेटी को तुमने ही कत्ल किया है। वो शख्स बोले चला जा रहा था और उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गया कि उस आदमी को मेरे घरेलू मसालों के बारे में इतनी मालूमात कैसे हुई। मेरे ख्याल में वो एक गोरगिन था, लेकिन उसको ये भी मालूम था कि ये मेरी बीवी है और इसके घर वाले मुझसे इस बात को लेकर पहले से ही नाराज थे कि उनकी बेटी की शादी की इतनी जल्दी मर गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मेरी बीवी की मैके कब्रिस्तान है, इसलिए शख्स को मेरे बारे में इतनी मालूमात है। शहरों में अमूमन ऐसी तफसील नहीं बताई जाती, ना ही कोई दूसरे खानदान के बारे में जानता है, लेकिन ये गोरगिन अजीब था जिसे हर तरह की मालूमात थी। मैं बड़ा हैरान था लेकिन चुप था। उस वक्त गम इतना था कि मैं फौरन अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ कहने लगी, बेटा इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम ऐसा करो कि दूसरा मोबाइल ले लो, खामखा परेशान होते रहोगे। अब अगर बीवी की वफात के बाद तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं होगा तो तुम्हारा दिल और भी ज्यादा परेशान होगा। अपना ध्यान बटाने की कोशिश करो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम जाकर नया फोन खरीद लो। माँ की ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा कि अम्मी जान, इस मोबाइल पर तो मेरे काफी सारे जानने वालों के नंबर मौजूद थे और इस मोबाइल के जाने से मेरे वो सारे नंबर भी जाते रहेंगे, लेकिन चलो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। आप मुझे पैसे दे दो, मैं 1 महीने के बाद वापस लौटा दूंगा। माँ ने मुझे पैसे दे दिए और मैं बाजार से जाकर एक नया फोन खरीद गया। मैंने अपने पास एक सिम भी रख ली, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मुझे मजीद बेचैनी में मुब्तला कर दिया। रात का वक्त था और मेरे मोबाइल फोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, लेकिन जब अचानक से थोड़े से सिग्नल नमूदार हुए तो मैंने पहला नंबर जो मिलाया और मेरे पुराने मोबाइल का था। शायद मैं सिग्नल चेक करने के लिए बेइरादी तौर पर ऐसा कर रहा था। मेरे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था। मेरा ख्याल था कि बस मेरा मोबाइल कब्र के अंदर गिर गया है तो अब वो खत्म हो गया होगा, बंद हो गया होगा, क्योंकि फोन में चार्जिंग भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने फोन मिलाया, इस बार बेल जाने लगी। ये बेल सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अजीब सा डर लगा कि मेरा मोबाइल कब्र में गया और वहां पर बेल जा रही है, लेकिन अगले ही लम्हे जो हुआ उसने मुझे हैरान करके रख दिया। मेरा फोन रिसीव कर लिया गया था और फिर जो हुआ मैं इस कदर हैरान और परेशान और तजस्सुस में मुब्तला हुआ कि फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। माँ भी हैरान थी कि ये क्या कर रहा है, बेटे कहाँ जा रहे हो? वो हैरान होते हुए मुझे पूछने लगी, माँ मैं अपनी बीवी की कब्र पर जा रहा हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो मोबाइल का बहाना करके चले गए थे, लेकिन अब क्या आफतान बड़ी है कि रात की इस वक्त तुम अपनी बीवी की कब्र पर जा रहे हो? अम्मा मुझे जाना होगा, ये कहकर मैं तो घर से निकल गया, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसके बाद मेरी माँ कितनी परेशान हुई होगी। अभी मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था और वो था मेरी बीवी का, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था उसके बाद मैं खामोश तो नहीं बैठ सकता था। मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इस मामले की जाकर तहकीक करूं। इसलिए मैं अपनी बीवी के आबाई कब्रिस्तान पहुंच गया था, लेकिन मैंने जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा तो गोरके ने मुझे मिला। अरे मियाँ, तुम यहाँ बार बार क्या ढूंढने चले आते हो? जो देखते हो? गुस्से से बोला गोरकिन, मियाँ आपका क्या काम है? कब्र खोदना। आप अपने काम से काम रखें। आप मुझसे बार बार सवाल क्यों करते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? अरे मियाँ, मैं तो तुमसे हमदर्दी की वजह से पूछ रहा हूँ, तुम्हें इस कब्रिस्तान का नहीं पता? मैं यहाँ का गोरगिन हूँ। मैंने गोरगिन को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक रंग आया और एक गुजर गया। अच्छा, मैं इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता बेटा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इसका ताल्लुक तुम्हारी बीवी से ही है, तुम्हारी बीवी की कब्र से नहीं। और तुम अपनी बीवी के घर वालों के पास जाकर इसके बारे में मालूम करो, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। मैं कुछ बोलूंगा तो वो खयानत हो जाएगी, इसलिए मैं खुद को गुनहगार नहीं करना चाहता। तुम खुद जाकर मालूम करो, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। अब मैं गोरगिन की सारी बात सुनकर समझ चुका था कि मुझे कोई बात नहीं बताना चाहता था, इसलिए कि शायद उसने मेरी बीवी के घर वालों से कोई रकम वसूल की होगी या कोई और वजह होगी जिस वजह से वो पूरी बात मुझे नहीं बता पा रहा था। लिहाजा मैं अपनी बीवी के कब्रिस्तान
से होकर उसके घर पहुंच गया, लेकिन मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी, बल्कि यूं ही घर के अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा कि वो सब लोग एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। घर के बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली था और वहां कोई भी नहीं था, इसलिए मैं चलता हुआ उस कमरे के करीब पहुंच गया जहां बैठकर वो लोग बातें कर रहे थे। मैंने देखा कि उन सब के चेहरों पर बेपनाह गुस्सा था। मुझे लगा वो अभी उठकर मुझे मारना शुरू कर देंगे। वो बात कर रहे थे मेरी बीवी ही के बारे में, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी बीवी पर गुस्सा क्यों कर रहे थे। तभी मेरा हाथ वहां पड़ी एक प्याली पर लगा, वो प्याली गिरकर टूट गई और तभी सबकी तवज्जो मेरे ऊपर आ गई। वो लोग मुझे यूं देखने लगे जैसे मैंने उस घर में चोरी कर ली हो। बेटा तुम यहाँ कैसे और कब आए? मेरी सास ने मुझसे पूछा। अम्मा जी मैं आपको एक बात बताने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अपनी सास के चेहरे पर एक उम्मीद भरी नजर डाली। हाँ बेटा आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार? मगर वो क्यों? मैंने हैरान होते हुए अपनी सास से पूछा। बस बेटा हालात ही कुछ ऐसे हैं, क्या करें, तुम्हें तो मालूम है। क्या मैं एक मामूली खानदान से ताल्लुक रखते गए, मेरा भांजा कल से घर नहीं आ रहा। वो है कि मेरी बहन भी परेशान हो गई है, कहती है कि अपने दामाद से कहकर मेरे भांजे को कहीं से ढूंढो वरना मैं मर जाऊंगी। मेरा एक ही जवान बेटा था, अगर वो भी ना रहा तो मैं क्या करूंगी। तुम जानते हो ना कि काफी अरसे से हमारी उनके साथ नाराजगी चल रही है, लेकिन अब इस मौके पर हम दोनों खानदान वाले एक दूसरे के बहुत करीब हो गए हैं। अपनी सास की ये बातें सुनकर मैं अपना गम भूल गया। अच्छा माँ जी मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको अपना मसाला बताने आया हूँ। बेटे मसाले तो चलते ही रहते हैं। मेरी सास ने मेरी बात को अक्सर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तुम पहले मेरा काम कर दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैंने अपनी सास के साथ बहस करना मुनासिब नहीं समझा। वहां से एक और जिम्मेदारी लेकर मैं वापस अपने घर आ गया। अपनी बीवी की कब्र खोलना चाहता था कि एक बार उसकी कब्र खोलकर अपनी तसल्ली कर लूं, क्योंकि मैंने जो कुछ सुना था, जो कुछ जानता था, ये सब सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया था। मैं चाहता था कि अपनी बीवी की कब्र खोलूं और उसकी कब्र कुशाई करूं, लेकिन कोई भी मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था। रात के 2 बजे मैंने कब्रिस्तान जाने का फैसला कर लिया था और मुझे अपनी बीवी की कब्र खोलना बहुत जरूरी लग रहा था। रात के 2 बजे घर के सब लोग सो चुके थे। मैं जानता था कि वो गोरबिंग जो बार बार मुझे मना कर रहा था वो भी उस वक्त नहीं जाग रहा होगा। उसको लगता होगा कि अब मैं थक हार कर चुप होकर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। इतनी बड़ी बात हो गई थी, मैं कैसे खामोश रहता। मैंने जाकर सारा इंतजाम मुकम्मल किया और तकरीबन 2:30 बजे कब्र खोलना शुरू कर दी। मुझे इस बात की हैरत नहीं हुई थी कि कब्र की मिट्टी काफी नरम थी। ऐसा लगता था कि जैसे कब्र को कुछ देर पहले ही बंद किया गया हो। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई तो कब्र की सिलों को हटाने में मुझे 5 से ज्यादा का वक्त नहीं लगा। मैं उस वक्त जोश और वलवले में था कि मैं बड़े से बड़ा पहाड़ भी उखाड़ सकता था। जब मैंने पत्थर की सिले हटाई तो मुझे एक और हैरत का झटका लगा। सामने का मंजर देखकर मेरे पसीने छूट गए। ठंडे पसीने मेरे चेहरे पर आ रहे थे। मैं इस कदर हैरान और परेशान था कि मुझे समझ नहीं आती थी कि अब क्या करूं, हंसूं या रोऊं या फिर अपनी बीवी का मातम मनाऊं। मुझे सामने कब्र खाली थी। कब्र में ना ही मेरी बीवी थी, ना उसका कफन था और ना ही मेरा मोबाइल फोन था। मैं तो अपना फोन ढूंढने आया था, लेकिन एक नया किस्सा खुल गया था। दरअसल जब मैंने अपना फोन अपने कान से लगाया तो किसी ने मेरी कॉल उठाई थी। इस बात से पहले मुझे लगा जैसे मेरा मोबाइल कवर के अंदर नहीं रहा, बल्कि मेरा फोन कुछ चोरी करके ले गया है। लेकिन जब मैंने अगली बात सुनी तो वहां से मेरा असल तजस्सुस जागा था। कुछ देर तक ऐसी आवाजें आती रहीं जैसे हवाओं के झकझक चल रहे हूँ। इसके बाद मेरे कानों में से एक ऐसी आवाज पड़ी कि मेरी बीवी सख्त अजाब में है और जब तक मैं उसके नाम का कर्जा अदा नहीं कर देता तब तक वो यूं तड़पती रहेगी। शायद मैं ये सब सुनकर बेवकूफ भी बन जाता, लेकिन फिर मैंने ये सोचने लगा कि कब्र में आने वाले फरिश्ते तो कभी भी उर्दू में बात नहीं कर सकते। वो तो सुना है कि अरबी में बात करते हैं, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फरिश्ते की आवाज मुझे फोन पर सुनाई दे। ये चीज कोई ड्रामा या झूठ लगती थी, ऐसा हो ही नहीं सकता था। बहुत सारे लोगों ने कब्र के अंदर कैमरे और माइक रखने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक किसी भी फरिश्ते की आवाज किसी इंसान के कानों में नहीं पड़ सकी। ये अल्लाह का एक राज है और अल्लाह खूब जानता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी कब्रिस्तान में थे फरिश्ते की आवाज कोई इंसान सुन ले। बस वहीं से मुझे शक बढ़ गया था और मैंने अपनी बीवी को कब्र खोदने की ठान ली थी। और फिर जब मैंने कब्र खोदी तो वहां मुझे कुछ भी न मिला, और ये देखकर मैं अपनी बीवी के घर वालों के पास चला गया। मैंने कहा कि आपकी बेटी की कब्र मैंने खोदी है, लेकिन मेरी बीवी वहां उस कब्र के अंदर मौजूद नहीं है। ये सुनकर मेरे ससुराल वाले मुझ पर गुस्सा करने लगे कि मुझे बेहुदगी करने की
किस ने कहा था? मेरी बीवी के भाई तो बाकायदा मुझे मारने पर तुल गए थे और वो इस कदर ऊंची आवाज में बात कर रहे थे कि अब मैं उनसे डरने लगा था। मैंने कहा कि आप मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अपनी बीवी के बारे में तो कभी बुरा सोच ही नहीं सकता, लेकिन ये बात उन लोगों को कौन समझा सकता था? उन लोगों को तो मैं जालिम जलाद या कसाई लग रहा था। मैंने अपनी बीवी के घर वालों से ज्यादा बात करना इसलिए मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो तो लड़ने झगड़ने और मर मिटने पर तैयार हो गए थे। ऐसे लोगों में से कितनी भी बात करता वो मेरी बात कभी न सुनते। वो हाँ था, बाकी सब काम छोड़कर अब मैं सिर्फ उसी ढूंढना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी बीवी की उस कजन पर बहुत ज्यादा शक था। वो भी घर से उसी दिन गायब हुआ था जिस दिन मेरी बीवी फौत हुई थी। खैर, मैं पूछता पूछता वहाँ के इकलौते बस अड्डे पर पहुंचा और वहां जाकर मैंने अपनी सास के भांजे के बारे में बताया। छोटे गांव के भी अपने फायदे हैं। अब ये बात मेरे लिए ज्यादा हैरान कुन न थी और मैं उसका पता पूछते पूछते उस तक कैसे पहुंचा ये एक अलग कहानी है। वो एक छोटी सी तंग गली में किराए के मकान में रहता था और आज मुझे उसको ढूंढते हुए एक हफ्ता हो चुका था। पूरे एक हफ्ते के बाद उसके घर को ढूंढने के बाद जब मैं उसके दरवाजे के सामने खड़ा दस्तक देने वाला था तो मेरे दिल में आने वाले तमाम सवालों का जवाब मुझे पहले से ही मालूम था, जबकि कुछ सवालात मेरे जहन में उठ भी रहे थे। मैं वो सब उससे पूछना चाहता था। जैसे ही दरवाजा खुला तो मैंने जो मंजर देखा वो मंजर देखकर मेरे पैरों तलों से जमीन निकल गई, क्योंकि दरवाजा खोलकर सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी खड़ी थी। मैं तो किसी और, मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग एकदम से फीका हो गया। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पीछे की जानिब भागने लगी, लेकिन मैंने उसका बाजू मजबूती से पकड़ा और उसे घसीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाने लगी। वो शायद अपनी गली वालों के सामने मुझे गुंडा ज़ाहिर करना चाहती थी, लेकिन मैंने सबको ये कहकर चुप करवा दिया कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे यूं ही यहाँ छोड़ कर नहीं जा सकता। वो सब लोग बहुत हैरान थे और मेरी बीवी के चेहरे पर भी पशेमानी थी। उसके चेहरे पर एक रंग आता और दूसरा जाता था। मैंने लाकर उसे गाड़ी के अंदर फेंका और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो? तुम तो मर गई थी। वो रोने लगी और कहने लगी कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दें, खुदा का नाम मत लो, तुमने उसे नाराज करके ये रास्ता इख्तियार किया है। अब बताओ कि तुम्हें क्या सजा दूं? मेरी बीवी हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगी कि पहले एक बार आप मेरी बात सुनने, फिर मैं आपको सब सच बता दूंगी। अगर तभी आपको यकीन ना आए तो आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। मेरी बीवी ने मुझे अपनी कहानी सुनाना शुरू की तो मैं भी चुप हो गया। मैं उसे क्या कहता और क्या सजा देता। उसने बताया कि वो जब से बड़ी हुई है उसके घर में उसके खानदान वालों का आना जाना लगा रहता था। उसका एक कजन था जो कि उसकी खाला का बेटा भी था। मेरी बीवी का कजन अक्सर उसके घर आता जाता रहता था। उसका नाम नजीर था। जब नजीर के साथ उसकी बेतकल्लुफ़ी बढ़ी तो नजीर ने उससे लालच दिया कि वो उसे शहर में मॉडलिंग करवाने के लिए लेकर जाएगा और खूब पैसा कमाएगी, मशहूर हो जाएगी और घर में गुर्बत खत्म कर देगी। उसे अपनी हवस का निशाना बनाया और साथ ही उसकी तस्वीर भी बनाई। जब उसकी काफी तस्वीर बन गई तो वो बेचारी मजबूर हो गई थी और उसकी बात मानने लगी थी। उसकी माँ को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने उसकी शादी मेरे साथ कर दी, लेकिन उसके भांजे ने फिर भी मेरी बीवी का साथ नहीं छोड़ा। वो कभी मेरी बीवी के घर आता और कभी मेरे घर आता। उसने मेरी बीवी को सख्ती से मना कर रखा था कि तूने अपने शौहर के पास नहीं जाना। तो यही वजह थी कि मेरी बीवी दो हिस्से में बट गई थी और वो उस शख्स की बातें भी मानती और मेरे घर में भी खुश रहती थी।